Welcome aspirants, welcome to Shirama YT channel. For today's 1 PYQ a day series, today is the day of governance and social justice, and that is why I'm here to bring out one previous year question of mains 2022 GS paper 2 for governance in India. Let's start by looking into our question. The question was reforming the government delivery system through the direct benefit transfer scheme is a progressive step, but it has its limitations too. Comment. It's a very straightforward question for 10 mark, 150 words. I will remind you again, the ultimate objective in UPSC mains answer writing is to write a well-structured, organized, imaginative, innovative, well-argued answer which is touching all the important keywords associated with the topic under discussion. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, और इंडिया गवर्नमेंट की जो डिलीवरी सिस्टम है उसको डीबीटी ने कंप्लीटली रिफॉर्म कर दिया है, और यही एग्जामिनर आपका पहले सेंटेंस में कह रहा है कि इट इज रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट delivery system through DBT is a progressive step. This is one part of the question. In the second part, they're asking you by saying it has its own limitations. यहाँ पे आपको comments अपने offer करने हैं कि what do you think about it, how you feel about it, and what do you understand by it as well. So let's start by writing introduction. Introduction, body, conclusion जो format है, it is a time tested format. If you have time, obviously you should subscribe to this फॉर्मेट. तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की. यू कैन स्टार्ट इन मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, यू कैन स्टार्ट either with some startling fact, you can start with a quote, you can simply build upon the statement given as well, and you can also offer some definition if the demand of the question permitted. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, which started in year 2013. It talks about transferring of government subsidies and welfare benefits to the beneficiaries through electronic mode. इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एंड इट हैज reduced the transaction cost to almost negligible. It has brought more efficiency, it has brought more transparency, it has rooted out corruption, eliminated लीकेज. बहुत सारे इस तरह के बेनिफिट्स हमें डीबीटी के साथ मिल रहे हैं, इसीलिए ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है. आफ्टर डिफाइनिंग व्हाट डीबीटी इज एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड, आप कोट से भी शुरुआत कर सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली कोट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी व्हेन ही हैज सेड कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, आई सेंड 1 रुपीज फ्रॉम दिल्ली टू द बेनिफिशियरीज, ओनली 15 पैसा reaches them. Rest of the 85 paisa is devoured by the system because of corruption. So you can start with a quote also. Here it will work equally well if you talk about the DBT when it was started and how it is a very progressive step. Progressive step ऐसे है कि इससे corruption जो है वो काफी हद तक कम होता है, एलिमिनेट हो जाता है ऑलमोस्ट, बिकॉज गवर्नमेंट डायरेक्टली, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? जैम ट्रिनिटी के माध्यम से. तो जनधन, आधार एंड मोबाइल जो ट्रिनिटी है, जो कॉम्बो है, उसने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम किया है, और ये यूनिवर्सल एस्पेक्ट है तीनों. देयर इज अ यूनिवर्सल एक्सेस टू आधार नंबर. एवरीबडी इन इंडिया ऑलमोस्ट हैव आधार, सैचुरेट हो चुका है ये. दैट इज जनधन अकाउंट्स, crores of accounts have been opened since 2015. और मोबाइल नियर यूनिवर्सल, यहाँ पे भी आप कह सकते हो एक्सेस लोगों के पास है आज की डेट में. तो जैम ट्रिनिटी के माध्यम से करप्शन ऑलमोस्ट यहाँ रूट आउट किया गया है. बेनिफिशियरी का जो बैंक अकाउंट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है आधार से, ये दोनों लिंक्ड हैं मोबाइल नंबर से. दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी रूट्स आउट करप्शन. इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड इफिशियंसी. देयर आर वैरायटी ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है, 6,000 रुपए दिए जाते हैं हर साल किसानों के खातों में डायरेक्टली. पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें, ग्रामीण हो या क्षेत्रीय जो एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में काम कर रही हो, एग्रीकल्चर में पीएम जो कृषि सिंचाई योजना है, उज्ज्वला स्कीम है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव ब्रॉट मोर एंड मोर इफिशियंसी इनटू गवर्नमेंट machinery.
then also empowerment to women. अर्लियर ऑन जो बेनिफिशियरी होते थे, अगर महिला बेनिफिशियरी है तो उनके पति, उनके हस्बैंड को या किसी मेल मेंबर को आई एम सॉरी पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। यहाँ पे जो पैसे है वो डायरेक्टली महिला के खाते में डाले जा रहे हैं, तो उससे उनकी एजेंसी भी यहाँ पे वैलिडेट होती है, एस्टैब्लिश होती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स, इफिशिएंसी, एम्पावरमेंट, करप्शन, लास्ट माइल डिलीवरी को इंडिया में जो जस्टिस है उसको इंश्योर करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है, हमारे प्रीएम्बल में बात लिखी हुई है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इट। तो जस्टिस की भी यहाँ पे आप इसको इंश्योर करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी सेटअप होती है यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी की, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी, और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी एज वेल। इन लॉट ऑफ मनी इज ऑल्सो बीइंग सेव्ड, तो फिजिकल बेनिफिट भी अगर लेवल पे देखा जाए तो सरकार को हो रहा है। जो पब्लिक फंड्स हैं उनका जुडिशियल इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, और जो लीकेज है वो कंप्लीटली रूट आउट कर दिया गया है, कंप्लीटली ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया गया है। बहुत सारे पहले इंक्लूजन एक्सक्लूजन के एरर्स होते थे, इंक्लूजन के एरर्स मोस्टली होते थे, कई बार एक ही बेनिफिशियरी दो जगहों से फायदा उठा रहा होता था उसी स्कीम के तहत, बिकॉज साइलोज में पहले डिपार्टमेंट्स काम करा करते थे। लेकिन डीबीटी के कारण ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो अब गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, पूरे सिस्टम को मिल रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दैट इज वाई दे सेइंग इट्स ए प्रोग्रेसिव स्टेप। बट इसकी लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। इफ यू ओनली राइट अबाउट द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ इट, हाउ इट इज ए बेनिफिट, इट ब्रिंग्स बेनिफिट टू द एंटायर सिस्टम, एंड लीव आउट द रेस्ट, तो जो आंसर होगा वो हाफ कंप्लीट माना जाएगा। तो यू विल हैव टू राइट डेफिनेटली अबाउट द लिमिटेशंस एज वेल। हमें लिमिटेशंस के बारे में भी बात करनी है। लिमिटेशन सबसे बड़ी इंडिया में ये है कि ये इंडिया एक डिजिटली डिवाइडेड सोसाइटी है। तो डिजिटली डिवीजन जो है दैट इज ए रियलिटी इन इंडिया। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल फोन। फाइनेंशियल इलिटरेसी भी है, बैंक्स के बारे में, बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, जो बेसिक फंक्शनिंग होती है बैंक्स की, उसके बारे में भी इतनी जागरूकता बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे नहीं है। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो स्पेसिफिक मार्जिनलाइज सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज हैं, उन सबके पास डिजिटल अवेयरनेस इतनी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि यहां मिस आउट होता है। मोबाइल का भी, जनधन का यूनिवर्सल एक्सेस है, आधार का यूनिवर्सल एक्सेस है, लेकिन स्मार्टफोन्स का एक्सेस आज भी यूनिवर्सल नहीं। तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट एक कैविएट यहाँ पे ऐड हो जाता है। दूसरा, जो डिटरमिन्ड ऑफिसर्स होते हैं करप्शन के लिए, जरूरी नहीं कि कंप्लीटली ही करप्शन एलिमिनेट हो जाए। झारखंड का जो स्कैम है 2020 का, वो बहुत ही एक रेलेवेंट स्कैम है विच यू कैन ऑलवेज साइट। ये एक स्कॉलरशिप स्कैम था जिसमें बोगस स्टूडेंट्स के नाम जोड़े गए, उनके बैंक खाते खोले गए, उनको आधार से लिंक किया गया रियल स्टूडेंट्स के, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एजुकेशन मिनिस्ट्री के और स्कूल के जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे, उन्होंने पैसे विड्रॉ करना शुरू किया। जिन बच्चों को एलिजिबिलिटी थी उनके पास, कुछ के पास पैसे गए, लेकिन वो भी फुल फ्लेज्ड अमाउंट उनको नहीं दिए जा रहे थे। तो जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस थी, जो एक इलिटरेसी थी, जो एक पावर इक्वेशन में वो वीकर साइड थे, उसको ऑफिसर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने एक्सप्लॉइट किया, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू नोट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ऑलवेज रिमेंबर, ये एक लीगल यहाँ पे पेच भी फंसा था कुछ सालों पहले जब आधार एक्ट 2016 में लाया गया था। उसमें बात कही गई कि आधार का डेटा मिलना हमारे लिए जरूरी है, सरकार ने कहा, तब जाके ही हम वेलफेयर के जो बेनिफिट्स हैं वो दे सकते हैं। उस वक्त हालांकि आधार की यूनिवर्सल एक्सेस नहीं थी, आज नियर यूनिवर्सल एक्सेस है। उसके बाद भी ये पॉइंट बहुत वैलिड है क्योंकि डेटा प्राइवेसी से जुड़ा हुआ ये विषय है। सरकार आपसे आपका आधार मांगती है अगर आपको बेनिफिट, वेलफेयर बेनिफिट चाहिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उचित है, अगर आप वेलफेयर बेनिफिट चाहते हैं तो आपको आधार नंबर आपका देना होगा। लेकिन आधार में भी इश्यूज हमारे सामने हैं, आधार के भी इश्यूज हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन फेलियर्स भी होते रहे हैं बहुत जगहों पे। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो थम्स हैं, वो प्रॉपरली मैच नहीं होते। जब ईस्टर्न इंडिया के कुछ राज्यों में कुछ सालों पहले ये खबर आई थी कि भाई जो न्यूट्रिशन रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, जो टारगेटेड पीडीएस स्कीम रिलेटेड बेनिफिट हैं, वो आधार के ऑथेंटिकेशन फेलियर के कारण उन बुजुर्गों को, उन एल्डरलीज को वो बेनिफिट
नहीं मिल रहे। तो आधार ऑथेंटिकेशन आज भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट विषय है। यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल जैसी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। बेनिफिशियरी के अगर खाते में पैसे नहीं पहुंचे, देयर इज हार्डली एनी एवेन्यू टू नो कि क्यों नहीं पहुंचे, कब पहुंचेंगे। हालांकि धीरे धीरे उसको एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये एक सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है। दैट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मिसिंग। और टेक्नोलॉजी की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हमने मनरेगा में देखा है कि कैसे जो बेसिक टेक्नोलॉजी थी, जो थम इस जो एक्सप्रेशंस हो गए, उसकी अगर हम बात करें, जो फोटो आइडेंटिटी बार बार मांगी जा रही थी कि मॉर्निंग में जब वर्कर आएगा तो उसकी फोटो खींचेगी, शाम को जब वर्कर जाएगा तो उसकी फोटो खींचेगी, जो कोऑर्डिनेट बेस्ड आजकल अटेंडेंस सिस्टम्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इनके कारण भी हमने देखा है कि कैसे टेक्नोलॉजी ऑल्सो एक्सक्लूड्स और इट रिजल्ट्स इन एक्सक्लूजन एरर्स। और मोस्टली जो पुअर सेगमेंट होता है समाज का, जो गरीब तबका है, जो शिक्षित नहीं है, जो मोस्टली सोशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आता है, कास्ट वाइज, इकोनॉमी वाइज, उनको सबसे ज्यादा इसका नुकसान झेलना होता है। क्योंकि लोकल लेवल पे ग्रीवियंस रिड्रेसल इसमें बहुत ही मुश्किल होती है। सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से चीजें यहाँ पे होती हैं। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वॉट लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम। तो by that time when you talk about the progressiveness of the step and the limitations, 150 वर्ड्स का आंसर है, मुश्किल से 15 लाइंस इसमें बनती हैं। हमें इसमें सब जो कीवर्ड्स हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन करने हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। यू विल हैव टू राइट ए फ्यूचर लुकिंग कंक्लूजन, जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे इस सिस्टम को हाइब्रिड मॉडल में भी लाया जा सकता है। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम का एक मिक्स काम करना चाहिए। प्रॉपर ग्रीवियंस एड्रेसल इसमें जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में डिजिटल लिटरेसी को और फाइनेंशियल लिटरेसी को और सीरियसली लेने की जरूरत है। दैट इज अल्टीमेटली द इंपॉर्टेंट थिंग। दिस स्टेप इज वेरी वेरी क्रूशल। जो बेनिफिट हैं इसके, दे फार आउटवे द कंसर्न्स और लिमिटेशंस। तो हमें यहाँ पे जो हमारा जो टिल्ट होगा, ऑब्वियसली वो डीबीटी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो बेनिफिट हैं वो बहुत ही रियल है। हजारों करोड़ रुपए पहले नुकसान होता था सरकार को और पब्लिक को, क्योंकि ये अल्टीमेटली पब्लिक फंड है जो कि जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो benefits far outweigh the concerns. The number of beneficiaries is a growing and living testimony of the fact that technology, if judicially applied, can bring a lot of benefits. It can ensure justice, it can ensure inclusivity, it can bring reforms in the administration by increasing efficiency as well. और ultimately हमें सिस्टम को और अच्छा और बेहतर बनाने की तरफ काम करना है। उसके लिए हमें ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म इसमें प्रॉपरली होने चाहिए। दूसरा, हाइब्रिड सिस्टम्स को यहाँ लाया जा सकता है। और तीसरा, हमें डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव करने की जरूरत है। ऑलवेज इंपॉर्टेंटली मेंशन द स्कीम्स, चाहे वो एग्रीकल्चर डोमेन में हो, चाहे वो हाउसिंग के केस में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के केस में हो, जितनी सारी स्कीम भारत सरकार चला रही है, जब हम कोई पॉइंट दें बेनिफिट के बारे में या हम उसको क्रिटिसाइज करने की तरफ जाएं, तो इन स्कीम्स का मेंशन बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट पुट आउट द एग्जांपल्स इन द आंसर्स, तो जो आंसर की वैलिडिटी है, जो डायनामिज्म है, वो मिस आउट हो जाता है। Many of you, I know, will write very good answer on this. But if you don't put examples, तो वो जो answer है वो half-hearted लगेगा. Always substantiate your point. This was a very simple question, 150 words, 15 lines. Just give it a try and write it out. This is how you write these answers for the UPSC mains. Just understand the concept, apply your linguistic skills judiciously, write in a time-bound, space-bound manner, and substantiate. That's how you write the mains previous year questions for UPSC. All the best.